1. In 1784, with the help of Charles Wilkins, Sir William Jones established the Asian Society of Bengal too. The greatest comboan was made by General Cunningham, who was appointed in 1882 as the archaeological surveyor to the government. He devoted about half a century to the study of ancient Indian history. Through his personal the Gumlak of information regarding the geography of ancient India, Hibo Kolakada luge number of Indian coins digging was also started at places like Booth Gaya, Bhatu, Sanchi, Samart and Taxila. 3. Mohgarh excavations deserve a special mention since Mehrgarh, located on the bank of the Bolan River in the Kochi Plain, Balochistan, is the only known Neolithic settlement in the Indian subcontinent, attributed to approximately 7000 BC. 4 inscriptions can be commercial, magical, religious, didactic, administrative, eulogistic, votive or dedicative, donative, commemorative and literary. 5. Some literary inscriptions contain poetic compositions and dramatic works, and their purpose is primarily literary. From the Mahanirvana Stupa at Kusinagar in Uttar Pradesh was discovered a copper plate containing 13 lines, the U-Sutra of Buddha. 6. Copper was the material which was commonly used for the writing of inscriptions. A copper-plated inscription was called Tamrapatra, Tamrashasana, Sasanapatra or Danapatra according to its contents. 7. The most notable works by Khusrai are Lala Majme and Veena 1 secondary dedicated to Alauddin Khalji. 8. The tools used by man during the Paleolithic age were pebble tools, which were quite crude. He made tools using flint, a kind of stone that chips easily. The tools of this age can be divided into 2 categories: core tools and flake implements. Core tools were made by chipping and shaping large stones. Flake implements were tools made from smaller pieces of stone and were used as choppers and cleavers to chop meat and skin animals. 9. One of the greatest inventions of Neolithic age was the invention of wheel. Early man observed the way logs rolled easily. This must have given him the idea of fitting wheels to his sledges and carts. The invention of the wheel made traveling quicker and more comfortable. 1. 1784 में चार्ल्स विल्किंस की सहायता से सर विलियम जोन्स ने की स्थापना की बंगाल की एशियाई सोसाइटी। 2. सबसे बड़ा संयोजन जनरल कनिंघम द्वारा बनाया गया था, जिसे 1882 में सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने लगभग आधी सदी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए समर्पित की। प्राचीन इंडिया के भूगोल के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारी के माध्यम से भारतीय सिक्कों की संख्या कोलोकाडा लुग नंबर 22 बूथ गया। भरहुत, सांची, सम्मठ और तक्षशिला में खुदाई शुरू की गई थी। 3. मोहगढ़ उत्खनन एक विशेष उल्लेख के योग्य है क्योंकि मेहरगढ़ स्थित है कोची के मैदान, बलूचिस्तान में बोलन नदी का तट। भारतीय उपमहाद्वीप में एकमात्र ज्ञात नवपाषाण तत्व है, जिसका श्रेय लगभग 7000 ईसा पूर्व है। 4 शिलालेख वाणिज्यिक, जादुई, धार्मिक, उपदेशात्मक, प्रशासनिक, स्तवनात्मक, मन्नत आज्ञाकारी, दान, स्मारक और साहित्यिक हो सकते हैं। 5. कुछ साहित्यिक शिलालेखों में काव्य रचनाएं और नाटकीय रचनाएं हैं और उनका उद्देश्य मुख्य रूप से साहित्यिक है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महाननिर्वाण स्तूप से एक तांबे की प्लेट की खोज की गई थी जिसमें बुद्ध के यू-सूत्र की 13 पंक्तियां थीं। 6. ताम्र वो सामग्री थी जो आमतौर पर शिलालेखों के लेखन के लिए उपयोग की जाती थी। तांबे की परत वाले शिलालेख को इसकी सामग्री के अनुसार ताम्रपत्र, ताम्रशासन, शासन पत्र या दानपत्र कहा जाता था। 7. खुसरो द्वारा सबसे उल्लेखनीय कार्य लैला मजमे और वीना 1 सिकंदरी हैं जो अलाउद्दीन खलजी को समर्पित हैं।
8. पुरापाषाण युग के दौरान मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण कंकड़ उपकरण थे, जो काफी कच्चे थे। उन्होंने चकमक पत्थर का उपयोग करके उपकरण बनाए, एक प्रकार का पत्थर जो आसानी से चिपक जाता है। इस युग के औजारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: मुख्य उपकरण और पटदार उपकरण। मुख्य उपकरण बड़े पत्थरों को काटकर और आकार देकर बनाए गए थे। फ्लैक इम्प्लीमेंट पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने उपकरण थे और मांस और त्वचा के जानवरों को काटने के लिए हेलीकॉप्टर और क्लीवर के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। 9. नवपाषाण युग के सबसे महान आविष्कारों में से एक पहिया का आविष्कार था। प्रारंभिक मनुष्य ने लट्ठों को आसानी से लुढ़कने के तरीके को देखा। इससे उन्हें अपने स्लेज और गाड़ियों में पहियों को फिट करने का विचार आया होगा। पहिए के आविष्कार ने यात्रा को तेज और अधिक आरामदायक बना दिया। In 1921, 2 archaeologists, Dayaram Sahani and Rakhalda Banerjee, carried out excavations at Mohenjo-Daro in Sindh and at Harappa, which revealed that a very advanced civilization far older and superior to the European had flourished in India. 2. According to most historians, the Mother Goddess and Lord Shiva were the most important deities of the Indus Valley civilization. 3. Animal worship was a popular practice of the people of the Indus Valley civilization. They considered the ox, bull, sheep, buffalo and lion as holy animals. 4. The people of the Indus Valley civilization were art lovers and capable of making beautiful and attractive idols. They were proficient in constructing buildings, making idols and seals, writing, dancing, music, and other art forms. 5. Seals in the Indus Valley civilization were prepared from different kinds of stones, metals, clay and ivory. 6. The Indus people loved ornaments. The chief ornaments worn by women included necklaces, armlets, bangles, carrings, nose rings, rings and waistlets. 7. Agriculture was the chief occupation of the people. The chief crops harvested were wheat, barley, cotton, maize and millet. They also grew fruits and vegetables. 1. 1921 में 2 पुरातत्वविदों दयाराम साहनी और राखाल्डस बैनर्जी ने सिंध के मोहनजोदारो और हड़प्पा में खुदाई की, जिससे पता चला कि एक बहुत ही उन्नत सभ्यता जो यूरोपीय से बहुत पुरानी और श्रेष्ठ थी, भारत में फली फूली। 2. अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण देवता देवी माँ और भगवान शिव थे। 3. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में पशु पूजा एक लोकप्रिय प्रथा थी। वे बैल, शेख, भेड़, भैंस और शेर को पवित्र जानवर मानते थे। 4. सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे और बनाने में सक्षम थे सुंदर और आकर्षक मूर्तियां। वे भवन निर्माण में दक्ष थे, मूर्तियां और मुहरें बनाना, लेखन, नृत्य, संगीत और अन्य कला रूप बनाना। 5. सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरें विभिन्न प्रकार के पत्थरों, धातुओं, मिट्टी और हाथी दांत से तैयार की जाती थीं। 6. सिंधु लोग आभूषणों से प्यार करते थे। महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले मुख्य शगुन में हार, बाजूबंद, चूड़ियां, कैरिंग, नाक अंगूठी, अंगूठियां और कमरबंद शामिल थे। 7. कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। काटी गई मुख्य फसलें गेहूं, जौ, कपास, मक्का और बाजरा थीं। वे फल और सब्जियां भी उगाते थे। 1. The Vedic literature includes the 4 Vedas also called Sanhitas, namely the Rig Veda, the Sam Veda, the Yajur Veda and the Atharva Veda and the Brahmanas, the Aranyakas and the Upanishads.
2. The source of the maintenance of the king and his officials was Bali, meaning offering. During the Rig Vedic times, this offering was voluntary and not a tax or an exaction. Both the clansmen of the king and the people of the conquered tribes gave Bali. 3. As land was not considered a property or an asset, territorial encroachment was not reported as a crime. Burglary, robbery, theft, etc. were reported as general cases of crime. The largest numbers of cases reported were of cattle lifting, which seems to be the most prevalent crime. Under these conditions, the king employed a large number of spies called sparsa to keep a vigil on the conduct of the masses. Other officials responsible to keep the law and order under control were Ugra and Jivagribha. Madhyamasi was another official who acted as a mediator in the disputes. 4. The tribal assemblies were an important pillar of the Rig Vedic society and polity. There were predominantly 4 types of assemblies. These were the Vidatha, the Gana, the Sabha and the Samiti. 5. Rig Vedic religion possessed certain features. 2 of these features are as follows. E. The religion was utilitarian, as the Aryans always expected power and prosperity by pleasing their gods. B. Amongst the gods, the male gods occupied dominant position. 6. The 2 main features of Rajasuya sacrifice were as follows. A. The ratning Havamshi. This included giving presents to the Mahishi and other important officials, called ratnans. B. The Abhishechaniya, or the besprinkling ceremony. 7. Settled life led to a further crystallization of the fourfold division of society. Brahmins claimed both social and political privileges. Kshatriyas constituted the warrior class. Vaishyas devoted themselves to trade, agriculture and various crafts, as they were the tax-paying class. New conquests brought large number of slaves. These slaves were absorbed into the social system as Shudras. 8. The Aryans had no coins and barter system was pursed for the exchange of commodities. However, the cow had become a unit of value and a medium of exchange. There is reference to one more medium of exchange called Nishka, which was probably a piece of gold of a fixed weight and was used as a sort of currency. 9. Parshava emphasized self-control and penance and advised his followers to observe 4 principles. I. Satya, truth. E. Ahimsa, non-violence. E. Aprigraha, no possession of property. And IV. Aste, not to receive anything which is not freely given. 10. Various factors contributed to the declining popularity of Jainism in India. It had to compete hard with both Hinduism and Buddhism. Absence of popular religious preachers after the death of Mahavira, its division into 2 important sects. Absence of protection by the later rulers, revival of Hinduism under the Gupta, Chola, Chalukya and Rajput kings contributed to its decline, though it still survives in India. 11. Buddha preached 4 great teachings which became famous as the 4 great truths. He said that I. The world was full of misery. E. There were causes for misery. E. One can attain freedom from this misery, and IV. Suppression of one's desire alone can end the misery, i.e. if one can conquer one's desires, he can attain nirvana or freedom from the constant cycle of birth and death. For controlling one's desire, he preached the middle path. 12. Gautam Buddha asked his followers to follow the Eightfold Path, viz. Right view, right aspirations, right speech, right action, right living, right disposition, right memory and right meditation. The Eightfold Path leads to the attainment of nirvana. Sat.
बसे हुए जीवन ने समाज के चौगुनी विभाजन को और अधिक स्पष्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों विशेषाधिकारों का दावा किया। क्षत्रियों ने योद्धा वर्ग का गठन किया। वैश्यों ने खुद को व्यापार, कृषि और विभिन्न शिल्पों के लिए समर्पित कर दिया क्योंकि वे कर देने वाले वर्ग थे। नई विजयों ने बड़ी संख्या में दासों को लाया। इन दासों को शूद्रों के रूप में सामाजिक व्यवस्था में समाहित कर लिया गया था। 8. आर्यों के पास कोई सिक्के नहीं थे और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। हालांकि गाय मूल्य की इकाई और विनिमय का माध्यम बन गई थी। विनिमय के एक और माध्यम का उल्लेख है जिसे निष्का कहा जाता है, जो संभवतः एक निश्चित वजन के सोने का एक टुकड़ा था और एक प्रकार की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 9. पार्श्व ने आत्मनियंत्रण और तपस्या पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। I. सत्य, सत्य, ई, अहिंसा, अहिंसा, ई, अपरिग्रह, संपत्ति का अधिकार नहीं, और इव, अस्तेय, स्वतंत्र रूप से न दी जाने वाली वस्तु को ग्रहण न करना। 10. विभिन्न कारकों ने भारत में जैन धर्म की घटती लोकप्रियता में योगदान दिया। उसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। महावीर की मृत्यु के बाद लोकप्रिय धार्मिक उपदेशकों की अनुपस्थिति, 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों में इसका विभाजन, बाद के शासकों द्वारा संरक्षण की अनुपस्थिति, गुप्त, चोल, चालुक्य और राजपूत राजाओं के तहत हिंदू धर्म के पुनरुद्धार ने इसके पतन में योगदान दिया। हालांकि यह अभी भी भारत में जीवित है। 11. बुद्ध ने 4 महान शिक्षाओं का उपदेश दिया जो 4 महान सत्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा कि आई, दुनिया दुख से भरी हुई थी। ई, इसके कारण थे दुख। ई, इस दुख से मुक्ति मिल सकती है, और इव, अपनी इच्छा का दमन ही दुख को समाप्त कर सकता है। अर्थात यदि कोई अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है तो वो निर्वाण या जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए मध्य मार्ग का उपदेश दिया। 12. गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा, अर्थात सही दृष्टिकोण, सही आकांक्षाएं, सही भाषण, सही कार्य, सही जीवन, सही स्वभाव, सही स्मृति और सही ध्यान। अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की प्राप्ति की ओर ले जाता है। 1. वैदिक साहित्य में 4 वेद शामिल हैं जिन्हें संहिता भी कहा जाता है, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 2. राजा और उसके अधिकारियों के भरण पोषण का स्रोत बाली था, जिसका अर्थ है भेंट करना, ऋग्वैदिक काल के दौरान। यह भेंट स्वैच्छिक थी, न कि कर या एक सटीक। राजा के कुलों और विजित लोगों दोनों के जनजातियों ने बाली को दिया। 3. चूंकि भूमि को संपत्ति या संपत्ति नहीं माना जाता था, इसलिए क्षेत्रीय अतिक्रमण को अपराध के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था। चोरी, डकैती, चोरी आदि को अपराध के सामान्य मामलों के रूप में रिपोर्ट किया गया था। रिपोर्ट किए गए मामलों की सबसे बड़ी संख्या मवेशी उठाने के थे, जो कि सबसे प्रचलित अपराध प्रतीत होता है। इन शर्तों के तहत राजा ने जनता के आचरण पर नजर रखने के लिए स्पासा नामक बड़ी संख्या में जासूसों को नियुक्त किया। कानून और व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए जिम्मेदार अन्य अधिकारी उग्रा और जीवग्रीव थे। मध्यमासी एक अन्य अधिकारी थे जिन्होंने विवादों में मध्यस्थ के रूप में काम किया। 4. जनजातीय सभाएं ऋग्वैदिक समाज और राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थीं। सभा मुख्यतः 4 प्रकार की होती थी। ये थे विदात, गण, सभा और समिति। 5. ऋग्वैदिक धर्म में कुछ विशेषताएं थीं। इनमें से 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। ए.
धर्म उपयोगितावादी था क्योंकि आर्य हमेशा अपने देवताओं को प्रसन्न करके शक्ति और समृद्धि की अपेक्षा करते थे। बी, देवताओं में पुरुष देवताओं का प्रमुख स्थान था। 6. राजसूय यज्ञ की 2 मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं। ए, रत्निनम हविंशी, इसमें महिषी और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, जिन्हें रत्निन कहा जाता है, को उपहार देना शामिल था। बी, अभिषेक्या या छिड़काव समारोह। 7. बसे हुए जीवन ने समाज के चौगुनी विभाजन को और अधिक स्पष्ट कर दिया। ब्राह्मणों ने सामाजिक और राजनीतिक दोनों विशेषाधिकारों का दावा किया। क्षत्रियों ने योद्धा वर्ग का गठन किया। वैश्यों ने खुद को व्यापार, कृषि और विभिन्न शिल्पों के लिए समर्पित कर दिया क्योंकि वे कर देने वाले वर्ग थे। नई विजयों ने बड़ी संख्या में दासों को लाया। इन दासों को शूद्रों के रूप में सामाजिक व्यवस्था में समाहित कर लिया गया था। 8. आर्यों के पास कोई सिक्के नहीं थे और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। हालांकि गाय मूल्य की इकाई और विनिमय का माध्यम बन गई थी। विनिमय के एक और माध्यम का उल्लेख है जिसे निष्का कहा जाता है, जो संभवतः एक निश्चित वजन के सोने का एक टुकड़ा था और एक प्रकार की मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 9. पार्श्व ने आत्मनियंत्रण और तपस्या पर जोर दिया और अपने अनुयायियों को 4 सिद्धांतों का पालन करने की सलाह दी। आई, सत्य, सत्य, ई, अहिंसा, अहिंसा, ई, अपरिग्रह, संपत्ति का अधिकार नहीं, और इव, अस्तेय, स्वतंत्र रूप से न दी जाने वाली वस्तु को ग्रहण न करना। 10. विभिन्न कारकों ने भारत में जैन धर्म की घटती लोकप्रियता में योगदान दिया। उसे हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। महावीर की मृत्यु के बाद लोकप्रिय धार्मिक उपदेशकों की अनुपस्थिति, 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों में इसका विभाजन, बाद के शासकों द्वारा संरक्षण की अनुपस्थिति, गुप्त, चोल, चालुक्य और राजपूत राजाओं के तहत हिंदू धर्म के पुनरुद्धार ने इसके पतन में योगदान दिया। हालांकि यह अभी भी भारत में जीवित है। 11. बुद्ध ने 4 महान शिक्षाओं का उपदेश दिया जो 4 महान सत्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने कहा कि आई, दुनिया दुख से भरी हुई थी। ई, इसके कारण थे दुख। ई, इस दुख से मुक्ति मिल सकती है, और इव, अपनी इच्छा का दमन ही दुख को समाप्त कर सकता है। अर्थात यदि कोई अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है तो वो निर्वाण या जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपनी इच्छा को नियंत्रित करने के लिए मध्य मार्ग का उपदेश दिया। 12. गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा, अर्थात सही दृष्टिकोण, सही आकांक्षाएं, सही भाषण, सही कार्य, सही जीवन, सही स्वभाव, सही स्मृति और सही ध्यान। अष्टांगिक मार्ग निर्वाण की प्राप्ति की ओर ले जाता है।